محترم حضرات حجاج اکرام معتمرین، اللہ پاک آپ کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ آپ حضرات جب یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو سیدھے مکہ مکرمہ جائیں گے اور آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ پہلا فرض احرام نیت تلبیہ ہے جو دہلی ایئرپورٹ پہ ہو جائے گا، اور دوسرا فرض بیت اللہ کا طواف ہے، جس کو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ آپ بیت اللہ شریف میں جا کر رکن یمانی پر جا کر کے آپ نے پہلے 4 کام کرنے ہیں۔ تلبیہ کو روکنا ہے، تلبیہ ختم کرنا ہے، دوسرا آپ نے استوا کرنا ہے یعنی کندھا کھولنا ہے، تیسرے عمرے کے طواف کی نیت کرنی ہے، اور چوتھے استقبال کرنا ہے، اور 5ویں استعلام کر کے اور طواف کو شروع کرنا ہے۔ اس طرح چکر لگائیں گے کہ شروع کے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل یعنی اکڑ کر کے چلیں گے اور مستورات نارمل چلیں گی۔ اگر جگہ نہیں ہے تو مرد حضرات رمل نہیں کریں گے۔ شروع کے 3 چکروں میں رمل، باقی 4 چکر نارمل رہیں گے۔ اس کے بعد 8واں استعلام کر کے باہر آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ کندھا بند کر کے استوا کو ختم کر کے کرنا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگیں کثرت سے، زمزم وغیرہ پی کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 9واں استعلام کر کے، یہ عمرے کے 2 فرض مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد 9واں استعلام کر کے صفا پر جائیں گے، صفا پر جا کر کے نیت کریں گے اور مختصر دعا کریں گے، اور صفا سے پھر مروہ کی طرف چلیں گے۔ بیچ میں جہاں ہری لائٹ آئے گی وہاں دوڑ کر کے رمل کر کے چلیں گے۔ حجان دھیان سے سنیں، اور وہاں سے مروہ کی طرف، مروہ سے پھر صفا کی طرف آتے اور جاتے ہوئے جہاں ہری لائٹ آئے گی وہاں پر اکڑ کر کے چلنا ہے۔ اس طرح مروہ پر جا کر کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، دعا کریں گے، اور وہاں پر اگر جگہ ہے یا جہاں کہیں حرم میں جگہ ملے 2 رکعت نماز نفل مستحب پڑھیں گے، جو پڑھنا مستحب ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ طواف کے بعد پڑھنا واجب ہے اور سعی کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد مرد حضرات اپنا حلق کرا لیں گے اور مستورات بال اس طرح کر کے کاٹ دیں گے، تو دونوں واجب بھی پورے ہو جائیں گے۔ یہ ہے عمرہ۔ ٹھیک ہے جی، آج روایت کر دیا۔ جب حج کا وقت آئے گا آپ کو اعلان کے ذریعے پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا حج کا وقت آ چکا ہے اور ہمیں کب جانا ہے۔ جیسے ہی آپ کے ہوٹل پر، کمرے پر، بلڈنگ میں لسٹ لگے گی، اسی جیسے ہم نے آپ کو سمجھایا، اس لسٹ کے اعتبار سے اپنا کور نمبر وغیرہ دیکھ کر کے، بس نمبر دیکھ کر کے تیار رہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جس طرح عمرے میں 2 فرض اور 2 واجب ہے، اسی طرح حج کے اندر 3 فرض اور 6 واجب ہے۔ 3 فرض اور 6 واجب ہے، اور حج کے 5 دن ہیں۔ حج کا پہلا فرض احرام نیت تلبیہ۔ جب چاند کی 7 تاریخ آ جائے، چاند کی 7 تاریخ آ جائے اور آپ کو معلوم بھی ہو گیا، چاند لگ گیا کہ ہمیں رات میں عشاء کے بعد 11 یا 12 بجے یا جتنے بھی بجے نکلنا ہے، تو آپ حضرات عشاء کی نماز سے فراغت کر کے اور کھانا وغیرہ کھا کر کے تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حاجی اور حجن وہ سامان جو ہم نے آپ کو لسٹ کے ذریعے بتایا، گروپ میں ڈالا ہے، اس سامان کو یاد رکھ کر کے اس کے علاوہ اور جو آپ کا ضرورت کا سامان ہے سارا سامان تیار کر لیں گے۔ سامان تیار کر کے بیگ تیار ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ احرام حرم شریف میں باندھنا اور وہاں جا کر باندھنا سنت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، بہتر ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آج کے زمانے میں بلڈنگ سے حرم شریف جانے کے 5 ریال اور آنے کے 500 ریال ہے، تو آپ خواہ پریشانی میں پھنس جائیں گے۔ اللہ نے پیسے دیے تو چلے جانا، چونکہ وہ لے جائیں گے بڑے پیار سے، 5 ریال پہ پہنچا دیں گے، اور پھر جب آپ وہاں سے چلیں گے تو یہ کہ تو نہیں تو میرا دوست کوئی نہ کوئی دے گا، ایک آدمی کا 500، یہ نہیں کہ پورے 500 میں ٹیکسی کر لیں گے کہ جی اب ایک آدمی کا 500 ہے، ہم پھنس گئے تھے۔ المختصر، تو جب آپ کا بہتر بات یہ ہے کہ اپنے ہی کمرے پر آپ کو پتا ہے کہ آج ہم عشاء کی نماز کے بعد جائیں گے۔ چاند کی تاریخ کون سی ہے؟ 7 اور 8 کی رات ہے، یہ درمیانی رات۔ تو 7 تاریخ جب نکل گئی، مغرب بعد ہو گیا اور ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی،
खाना वगैरह खा लिया, सारी जरूरियात से फारिग हो गए, जो हमने ग्रुप में सामान की लिस्ट डाली है वो सामान वगैरह तैयार हो गया, और जो सामान आपको लेना अपनी जरूरत का वो ले लीजिए। अब सबसे पहला काम ये है, अपने कमरे पर बिल्डिंग में अपने कमरे पर मर्द हजरात इस तरह एहराम बांधेंगे। ये आसान तरीका है, अपने तौर पर बांध सकते हैं। और हाजी फाखिर मतीन के लिए वो बता दें कि औरतों का वही एहराम है जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, अलबत्ता ऊपर जो है वो अपनी ये हिजाब डालेंगी, टोपी ओढ़ेंगी ताकि बाल न टूटे, और अपने चेहरे को के ऊपर कपड़ा नहीं लगाएंगी। अगर हमारी माँ बहने उस वक्त में नापाकी के अय्याम में है तो नापाकी के अय्याम में ही एहराम बांधेंगी और नियत भी करेंगी, तलबिया भी पढ़ेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी। तो हमारा पहला काम क्या है? एहराम, नियत, तलबिया। तो हम अपनी बिल्डिंग में अपने कमरे में इस तरह से उल्टे हाथ की तरफ को कपड़ा मोड़ करके लाएंगे और ला करके हम टांगे चौड़ा करके सीधा कपड़ा सीधे पैर पे यहाँ ले आएंगे। ये आसान तरीका है, बाकी हर आदमी अपने हिसाब से बांध सकता है। हमने इस तरह करके ये यहाँ लिया और सीधे हाथ का कपड़ा इधर लिया है और लाने के बाद इसको धीरे धीरे हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल अच्छे से हमने अपने आप को बांध लिया। इसमें बेपर्दगी नहीं होगी, खुलेगा भी नहीं। अगर किसी से इस तरीके से ना बंधे, किसी और तरीके से बांध सकते तो बांध सकते हैं। अपनी बेल्ट वगैरह ये बांध ले या कोई पर्स वगैरह गले में डाल ले, पर्स गले में भी डाल सकते हैं आप। और उसमें तमाम जरूरत का सामान जैसे आपका कवर नंबर, बिल्ला, पैन कार्ड है और मीना का कार्ड है, हाजी जी खाने के टोकन वगैरह जो भी आपको सामान वहां से मिलेगा जो जरूरत है वो अपने बैग में रख लीजिए। अब आप बिल्कुल तैयार हो गए, अपने ही कमरे पे हैं। अब हमारा पहला काम है हज का पहला फर्ज। पहला कितने फर्ज है और वाजिब कितने हैं? तो पहला फर्ज हमारी बिल्डिंग पर जहां हम रुके हुए हैं, हमारी बिल्डिंग पर हमारे कमरे में हमने नीचे की चादर बांध ली और ऊपर हमने सर रख करके इस तरह से दूसरी चादर डाल ली। ये दोनों चादर हमने डाल ली। उसके बाद हम 2 रकत नमाज नफिल एहराम की नियत से पढ़ेंगे। किसकी नियत से? 2 रकत नमाज नफिल आप एहराम की नियत से पढ़ें। बेहतर है कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें और नमाज पढ़ के सलाम फेर दें। उसके बाद अब आप सर खोल दें और सर खोलने के बाद अब आप नियत करें। सब कहिए, या अल्लाह मैंने हज का एहराम बांधा है, आप इसको कबूल कर लीजिए, मेरे लिए करना आसान कर दीजिए। उसके बाद तलबिया पढ़ लीजिए जोर से 3 बार। जो एक मरतबा पढ़ लीजिए जरा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस अब हमारा लिबास ये है, हमारा लिबास यही है। बस सारे हाजी एक लिबास में होंगे। हज्जन अपने कपड़े जो उनका कपड़ा पहन रखा वही उनका एहराम है, बस ऊपर से हिजाब डालेंगी, टोपी ओढ़ेंगी ताकि बाल न टूट जाए। लेकिन हज्जन जब वजू करेंगी तो इस हिजाब के ऊपर से मसा नहीं करेंगी, हिजाब के अंदर हाथ डाल करके बालों पे मसा करना है, बालों पर मसा करना है। हज्जन जो है जब वुजू करेंगी तो जैसे वुजू यहाँ करते हैं ऐसे ही करना है। लेकिन बहुत सी औरतें हिजाब नहीं उतारेंगी तो बाल टूटेंगे, बाल नहीं टूटेंगे। आप हाथ डाल करके और मसा कर लीजिए, क्योंकि अपने कपड़े के ऊपर यानी हिजाब के ऊपर मसा नहीं करेंगे। लीजिए, ये पहला फर्ज मुकम्मल हो गया, पहला फर्ज मुकम्मल हो गया। एहराम, नियत, तलबिया। अब हमारा भी तलबिया ही तलबिया पढ़ना है। जब वो कहेंगे जी गाड़ी लग गई, मुअल्लिम के आदमी आपके साथ रहेंगे, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने कमरे से निकलिए और बिस्मिल्लाह पढ़ करके ही आप गाड़ी में बस में सवार हो जाइए। सामान आपके साथ है, 2 बैग बनाएंगे, एक हज्जन का और एक हाजी का। सामान खरीद के यहीं से ले जाएंगे। अब मेरे मोहतरम बुजुर्ग, हटा दे। असल में हमारा मकसद कहने का यह है कि ऊपर से मसा ना करें, हटा के कर सकते हैं, हटाने में कोई हर्ज नहीं है। अब हम एहराम की पाबंदी में आ गए जो मैंने आपको बताई थी पहले। उसके बाद हम बस में बिस्मिल्लाह पढ़ के बस में सवार हो जाएंगे, अपने हज्जन को लेंगे, अपने साथियों को इकट्ठा जो हमारे साथ में है, कमरे के साथ ही इकट्ठा हो जाते हैं, उन साथियों को साथ लेकर के अब हम रहनुमाई करते हुए बस में बैठ जाएंगे। हमारा जो विर्द है वो तलबिया है। क्या है जी? रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, 4 बजे, जिस बजे भी हम पहुंचेंगे, लीजिए हम मीना आ गए हैं। कहाँ आ गए?
मीना आ गए। मीना में जाने के बाद हमने आपको बताया था कि कुछ अलामत, निशानी, बोर्ड नंबर, रोड नंबर वगैरह याद दहानी के वास्ते लिख लीजिए। उसके बाद अब आप अपने काम से फारिग हो करके अपने खीमे में चले जाइए। यहाँ मस्तूरात अलग होंगी और मर्द हजरात अलग होंगे। आज कोई काम नहीं है, बस आप इस्तिंजा वगैरह की जगह दे रही, जैसे हमने आपको समझाया, ये भी चीजें इसलिए ताकि आसानी हो आपको सफर में। लीजिए, अब सुबह हो गई। क्या हो गई भाई? सुबह हो गई। जिस टाइम भी हम पहुंचे रात में सुबह हो गई, ये सुबह के बाद पहुंचे, जैसे भी आपको तरतीब बनेगी। लीजिए, मस्जिद खैफ के अंदर, मस्जिद खैफ में फजर की अजान हो रही है। जब अजान की हो जाए आप तैयारी करके वजू वगैरह करके मस्जिद खैफ जाने की कोशिश ना करें। वहीं सिंजा वगैरह से फरागत करके वजू करके अपने खीमे में अपने साथी को उठा करके छोटी छोटी जमात करके फजर की नमाज पढ़ेंगे। आज हज का और आज हमारा सिर्फ एक काम है, कसरत से तलबिया पढ़ना, जिक्र अस्कार करना, तिलावत करनी है, कुरान अगर है तो अल्लाह अल्लाह करना है। और आज मिना के अंदर सिर्फ 5 नमाजें पढ़नी है। मिना में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 नमाजें पढ़नी। इशा की नमाज के बाद आपको इत्तला दी जाएगी कि आप अराफात के लिए तैयार हो जाइए। तो जो सामान आप कमरे से लेकर आए हैं उसमें से वो सामान निकाल ली जो आपको अराफात ले जाना है, जो हमने ग्रुप में लिस्ट में डाला है। और इसके अलावा जो आपके जरूरत का सामान है वो ले लीजिए। वो जब भी कहे कि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हम आपको ले चलेंगे, आप तैयार हो जाइए, आप इस्तिंजा वगैरह से फारिग हो जाइए, खाना अच्छे से खा लीजिए, तमाम काम से फारिग हो जाइए। जल्दी मत करेंगे, सब्र करेंगे और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने साथियों को लेकर, हज्जन को लेकर के, मेट्रो वाले साथी मेट्रो से, बस वाले बस से, कार वाले कार से, पैदल वाले पैदल से, जैसे समझाया ऐसे ही ठहराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सब्र से काम लें, मतानत से काम लें। आपको मुअल्लिम का आदमी अब कवर नंबर यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ मुअल्लिम नंबर चलेगा, मकतब नंबर चलेगा। क्या कहेंगे? मकतब नंबर 38 है, 40 है, 50, 60 जो भी नंबर मिलेगा, मकतब नंबर के एतबार से अब आपका हज का पहला दिन मुकम्मल हो रहा है। 5 नमाजें पढ़ ली, अब आपको मुअल्लिम का आदमी ले जा रहा है अराफात के मैदान में। लीजिए, रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब तक भी अल्लाह का हुक्म था, हम सवारी से, मेट्रो से, कार से, पैदल जैसे भी है, हम अराफात के मैदान में आ गए। यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं और यहाँ हमने आकर के अपना सामान रख लिया। हज्जन अपने साथ एक कोने में इधर और हाजी इधर, अपने टेंट में आराम कर लीजिए। इस्तिंजा वगैरह की जरूरियात देख लीजिए, खाना कहाँ मिलेगा, नाश्ता कहाँ में, ताकि परेशानी ना हो सुबह को उठने में। अब आप आराम कर लीजिए। लीजिए, थोड़ी बहुत देर के अंदर मस्जिद नमरा से फजर की अजान की आवाज आएगी। आप तैयार हो जाइए। तैयार होकर के फजर की नमाज, सुन्नतें और फर्ज जमात के साथ छोटी छोटी जमात करके, किसी को परेशान न करे, नमाज पढ़ लीजिए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आज जैसे हर नमाज के बाद तकबीर वो पढ़ रहे थे, तलबिया पढ़ रहे थे, आज से फजर की नमाज के बाद से पहले तकबीर तशरीफ पढ़ेंगे और फिर तलबिया पढ़ेंगे। तकबीर तशरीफ पढ़ दीजिए। क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ना है औरतों को भी, मर्दों को भी। और अपने बार बार नहीं कहूंगा, ये तलबिया आज 9 तारीख से शुरू होकर के 13 की असर तक, 13 तारीख की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद जैसे यहाँ पढ़ते हैं ऐसे ही 23 नमाजों में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जिक्र अस्कार कर लीजिए, इशराक पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता करके आप आराम कर लीजिए। लीजिए, अब 11 बज गए। 11 बजने के बाद अब आप जो है वकूफ अरफा की तैयारी कीजिए, जो हज का अहम फर्ज है। इसी का नाम ही हज है। जैसे मैंने बताया कि अब आप 11 बजे उठ गए, इस्तिंजा वगैरह फरागत कर ली, भूख लगी, खाना खा लीजिए, ठंडा वगैरह पी लीजिए, आराम कर लीजिए, बिल्कुल आराम से हो जाइए। लीजिए, 12 बज के कुछ मिनट हो गए, मस्जिद नमरा से अजान की आवाज आएगी। अगर आप मस्जिद नमरा में है या मस्जिद नमरा की मुत्तसिल सफों में है तो इमाम के साथ ही जोहर के वक्त में जोहर की 2 रकात और असर के जोहर के वक्त में असर की 2 रकात पढ़ेंगे अगर इमाम के साथ है। हिंदुस्तान के उलमा कहते हैं कहीं तुम्हें 2 और पढ़नी, 4 पढ़ दो। मैं कहता हूँ आपको इख्तियार है, चाहे कि वहां के उलमा की बात मान लो, चाहे यहाँ की मर्जी है। कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह। और अगर हम मस्जिद नमरा के नजदीक नहीं है, हम दूर हैं, तो हम मस्जिद नमरा जाने की कोशिश ना करें, हम जबल रहमत पे जाने की कोशिश ना करें, हम अपने टेंट में रहें। जोहर की नमाज अदा कर लीजिए। जोहर के वक्त में ही 4 फर्ज पढ़ेंगे, सुन्नतें, नफले वगैरह सब पढ़ेंगे। 4 फर्ज यहाँ पढ़ेंगे, अपने ही
टेंट में नमाज पढ़ने के बाद अगर आपको अरफात के मैदान मस्जिद नमरा से खुतबे की आवाज आ रही तो खुतबा सुन लीजिए, और अगर आवाज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप बाहर निकल जाइए, धूप में या छां में खड़े होकर बैठकर रो करके कैसे भी आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। 3 दुआ कसरत से पढ़े, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद कसरत से पढ़े, तीसरा कलमा कसरत से पढ़े, चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर यानी कुल हुवल्लाहु अहद जी, और उसके बाद तीसरा कलमा कसरत से, चौथा कलमा कसरत से पढ़े। इसके अलावा जो भी दुआ मांगे आप दुआ मांगते रहे, खड़े होकर के बैठ करके छाए में धूप में जैसे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगे कसरत से दुआ मांगे। जब तक आपकी हिम्मत दुआ मांग लीजिए, उसके बाद अपने टेंट में आ जाइए, यहाँ भी जिक्र अस्कार में मशगूल रहिए। लीजिए मस्जिद नमरा में असर की अजान होगी, असर की अजान होगी, जबकि मस्जिद नमरा में असर की नमाज हो चुकी है, जोहर के वक्त में हो चुकी, क्योंकि अल्लाह के रसूल का वही हुक्म है मस्जिद नमरा वालों के लिए, सबके लिए नहीं है। हम लोग अपने टेंट में है, असर की अजान होगी, वजू वगैरह करके सिंजा वगैरह फारिग हो करके आप असर की नमाज अदा करेंगे 4 फर्ज अपने खीमे में, अपने ही टेंट में, यानी जोहर के वक्त में 4 जोहर की और असर के वक्त में 4 असर की। असर की नमाज पढ़ने के बाद जरूरियात से फारिग हो जाइए, कुछ खाना वगैरह खा लीजिए और तलबिया कसरत से पढ़िए। यहाँ पर तलबिया या अरफात का मैदान है, अल्लाह से कहिए मैं हाजिर हूँ, तुम्हारे ना कोई शरीक नहीं है। जो तलबिया है लब्बैक अल्लाहुम्मा कसरत से पढ़ेंगे और मगरिब की आजान का इंतजार भी करते रहेंगे। जो सामान हमारा है सामान बांध लीजिए, पानी वगैरह रख लीजिए, अपने हज्जन को पास बुला लीजिए, साथियों को इकट्ठा कर लीजिए। कोई आपसे कहे कि चलो निकल करके कोने पे चलते, किनारे पे चलते, आप ऐसा बिल्कुल ना करें मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। लीजिए थोड़ी देर में मगरिब की अजान हो गई, मगरिब की, हम यहाँ से अरफात के मैदान से मगरिब के बाद निकलेंगे। कब निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? मुज़दलिफा। कहाँ जाएंगे? यहाँ आज हमने हज का कौन सा दिन हो गया और काम क्या था यहाँ पर? वकूफ अरफा, वकूफ अरफा, खड़े होकर के धूप में, नहीं जवाल के बाद, जवाल के बाद, जवाल से पहले नहीं, जवाल के बाद से लेकर गुरूब तक का वक्त है, जवाल के बाद से यानी जोहर के बाद से गुरूब तक है। अब आप जैसे मगरिब की अजान लगेगी, अब आप अपने टेंट से चलेंगे, किसी के कहने से बाहर न निकले, क्योंकि पता नहीं क्या पता हम मगरिब से पहले अरफात से बाहर हो जाए, मालूम नहीं है हमें तो हुदूद का, इसलिए किसी कहने में ना आए। जहां टेंट में हमें ठहराया गया वहीं रहिए। लीजिए मगरिब की अजान हो गई, पानी वगैरह ले लीजिए, सामान को उठा लीजिए, हज्जन का हाथ पकड़ लीजिए। यहाँ से सारे हाजी एकदम लक निकल रहे हैं, इसलिए कोई आदमी जैसे बिछड़ न जाए। हज्जन का हाथ मजबूती से पकड़ लीजिए, साथियों को इकट्ठा कर लीजिए। अब आप जो मेट्रो वाले मेट्रो से जाएंगे, बस वाले बस से जाएंगे, कार वाले कार से और पैदल वाले पैदल से। लीजिए रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे 1 बजे 2 बजे तक कहाँ आ गए लोग? मुज़दलिफा के मैदान में आ गए। मुज़दलिफा में आने के बाद अपना कपड़ा वगैरह बिछा लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, थके हुए हैं, इस्तिंजा वगैरह से फरागत कर लीजिए, वजू कर लीजिए, नमाज की तैयारी कर लीजिए, ज्यादा भूख लगी खाना भी खा लीजिए। उसके बाद अब एक साथी, बेहतर यह है एक साथी अजान लगाएगा। अगरचे मस्जिद मशअर हराम में अजान हो चुकी है, हमने यहाँ पर मगरिब की नमाज और इशा की नमाज इशा के वक्त में पढ़नी है। अगर हम इत्तिफाक से मगरिब की नमाज के फौरन बाद ही पहुंच गए मुज़दलिफा, इशा का वक्त नहीं आया तो मगरिब बल्कि मगरिब कब पढ़ेंगे? हम इशा के वक्त में पढ़ेंगे। लीजिए अव्वल जल्दी नहीं आ पाओगे। अल मुख्तसर ये है कि इशा की नमाज अजान हो चुकी होगी मस्जिद मशअर हराम में, चूंकि तो लेट पहुंच रहे हैं यहाँ पर, एकदम से नहीं पहुंच सकते। अल मुख्तसर, अब अगर हम पहले भी आ गए तो इशा की वक्त का इंतजार करेंगे। मस्जिद में मशअर हराम से आवाज आएगी या अजान पहले हो चुकी होगी, मस्जिद में नमाज भी हो चुकी होगी, हम क्या बाद में पहुंचे, क्योंकि वहां हर नमाज हर मस्जिद में अव्वल वक्त ही होती है। हमने टाइम देखा कि भाई वहां 10 बज गए 11 बज गए, तो अब एक साहब जो है तमाम जरूरी याद से फारिग होके जल्दी न करे, सबर करे और गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पहले एक साथी अजान लगाएगा, यानी एक ही अजान से, एक ही तकबीर से दोनों नमाजें पढ़नी है, मगरिब भी और इशा भी। एक साथी ने अजान लगा दी, छोटी छोटी जमातें कर ली, किसी को उठाने बिठाने की जरूरत नहीं, तो भैया ऐसा नहीं करना, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, छोटी छोटी आप जमात कर लीजिए।
लीजिए पहले एक अजान हो गई, उसके बाद एक तकबीर हो गई और मगरिब की नमाज हमने पढ़ ली 3 फर्ज। उसके फौरन बाद हमने फिर बगैर किसी तकबीर के, क्योंकि एक ही अजान है और एक ही तकबीर है, लीजिए पहले मगरिब की नमाज 3 फर्ज पढ़ेंगे, फिर इशा की नमाज 4 फर्ज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मगरिब की सुन्नत नफिल पढ़ेंगे, फिर इशा की सुन्नत नफिल और वितर पढ़ेंगे। उसके बाद आराम कर लीजिए, कुछ देर बैठ जाइए, खाना वगैरह खा लीजिए, जरूरियात से फारिग हो जाइए, कोई साथी नहीं मिले उसे तलाश कर लीजिए, लीजिए सब आ गए। अब हज्जन को यहीं बिठा लीजिए, जवान साथी उठेंगे बूढ़ों को मत ले जाओ। और मुजदलफा के मैदान में पेड़ों के नीचे पहाड़ के जड़ में और मैदानों में कंकरियां पड़ी हुई है, वहां से एक हाजी अपने लिए 70 कंकरियां चुनेगा। कितने? हाँ, जैसे कंचा गोली होती इसके बराबर 70 कंकरियां ले अपने लिए, 70 अपने हज्जन के लिए। उनको कपड़े की यहीं से थैली बना के ले जाना, धो धा के उसके अंदर रख लेना। अब आपने सब काम कर लिया, आप आराम कर लीजिए। आज की रात बड़ी इबादत की है, अगर आपको हिम्मत है तो इबादत भी कर लीजिए, नमाज नफिल पढ़ लीजिए, जिक्र अस्कार कर लीजिए और कसरत के साथ तलबिया पढ़ते रहिए, कसरत के साथ। अब हमें आज रात में ही 1 बजे 2 बजे 3 बजे मुअल्लिम का आदमी कहेगा चलो मीना 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 मीना, तो आपने नहीं जाना। जैसे हमने समझाया था, उससे कहना हम हनफी है, हमें वकूफ मुजदलफा करना है। क्या करना है? वकूफ मुजदलफा करना है, जिसका वक्त सुबह सादिक से लेकर इशराक तक है, सुबह सादिक से लेकर इशराक तक है। हमें खड़े होकर के वकूफ मुजदलफा करना है जनाब, हम नहीं जाएंगे। बदतमीजी में झगड़ा नहीं करना, इतना बोलना अना हनफी व वकूफ मुजदलफा हा हुना, हम हनफी हैं, हमें यही वकूफ मुजदलफा करना है। ला ला रहब इला रमी, हम रमी के लिए नहीं जाएंगे। इतनी बात नहीं, बा हनफी कह देंगे छोड़ देंगे आपको। बहरहाल अब मस्जिद मशअर हराम में फजर की अजान हो रही है। मस्जिद मशअर हराम ये कहाँ है? मुजदलफा में है। 70 कंकरियां चुन लिया आपने, तमाम काम से फारिग हो गए, इस्तिंजा वगैरह से फरागत कर लीजिए, जरूरियात से फारिग होकर वजू कर लीजिए। अब पहले फजर की नमाज की 2 सुन्नतें और 2 फर्ज पढ़ लीजिए, तकबीर तशरीक और तलबिया साथ साथ है। उसके बाद अब आप खड़े होकर के, क्योंकि फजर की नमाज पढ़ ली, सुबह सादिक हो गई, सुबह सादिक के बाद ही फजर पढ़ी जाती है, तो अब वकूफ मुजदलफा का वक्त हो गया। कहीं भी खड़े होकर, कहीं भी खड़े होकर के तो कोई जरूरी नहीं है कि जबल कज़ा पे जाना, कहीं जाना, जहां भी आपको जगह मिली हुई है वहीं खड़े होकर के अल्लाह के मुतवज्जे होकर दुआ कर लीजिए। 10 मिनट कर लीजिए, 7 मिनट कर लीजिए, आधा घंटा कर लीजिए, आपके ऊपर बशाशत है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की जो दुआ आपकी अरफात मैदान में कबूल नहीं होती, वह यहाँ कबूल हो गई। और हमने यहाँ पर वकूफ मुजदलफा कर लिया। अब हमें जाना कब है? तुलू आफ्ताब के बाद। कब जाना है? कब जाना है यहाँ से? ये नहीं कि सुबह ही हमने 5 बज के कुछ नमाज हो रही थी, नमाज पढ़ी, वकूफ किया और चल दिए, नहीं, यहाँ ठहरो। अभी यहाँ क्या है? अभी ठहरना है। सबसे आगे को वकूफ मुजदलफा करने दो, क्योंकि सिंजे में होगा, कोई कहीं होगा। हमें कब निकलना है? सूरज निकलने के बाद। हाँ, सूरज निकल गया, अब अपने साथी को लेकर के, अगर आपको मुहैया है, अब तो कुछ नहीं मिलेगा, न मुअल्लिम का आदमी। अब तो तमाम ट्रेन, जो भी ट्रेन है, जो भी बस है, जो भी गाड़ी है, जो भी है, वो सब कहाँ जा रही है? जमरात पर। हर पॉइंट पर रुकती हुई, हर पॉइंट पर रुकती हुई, आखिरी स्टेशन सबका क्या है? जमरात है। हज का कौन सा दिन हो गया? आज 3रा दिन हो गया। और हमारे यहाँ आज ईद है, बकरा ईद है। आज हमारे यहाँ क्या है? बकरा ईद है। और आपके लिए हज का 3रा दिन है। हज के 3रे दिन में 3 काम तरतीबवार करने हैं, 3 काम तरतीबवार करने हैं। पहले हमें बड़े शैतान के कंकरी मारनी है 7। कितनी कंकरी मारनी है? 7। ये भी वाजिब है। तो एक तो वाजिब मुजदलफा में हो गया, मुजदलफा में वाजिब हो गया। दूसरा कंकरी मारना तीनों दिनों में, ये भी वाजिब है। वह कंकरी मारने के बाद कुर्बानी होनी है, और कुर्बानी होने के बाद हमें हल्क कराना है, बाल मुड़ाने हैं। आज 3 काम तरतीबवार होने हैं। लीजिए, हम थोड़ी बहुत देर में 11 बजे 10 बजे 12 बजे तक हम कहाँ आ गए? मीना आ गए। मुजदलफा से कहाँ आ गए? मीना। सूरज निकलने के बाद चले थे, हो सकता है भीड़, हम देर से पहुंचे। मीना में कहाँ आना है? अगर सामान ज्यादा है तो अपने खीमे पर रख दीजिए, और नहीं तो सीधी जो भी गाड़ी है, जो भी रास्ता है, और वो ब्रिगेड वो लगा करके ना रास्ता बंद करके सीधे सबको जबरात की तरफ रुख कर देते हैं। हम मुजदलफा से सब जबरात पे जाएंगे। मुजदलफा से कहाँ जाएंगे? जो भी ट्रेन है, जो भी ट्रेन है वो बीच में रुकेगी तो, लेकिन आखिरी स्टेशन क्या है उसका? जमरात। जो भी बस चलेगी आखिरी स्टेशन
जो भी कार आएगी आखिरी स्टेशन, उनके अलग अलग रोड है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पैदल चलने वालों को कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ चली जाती है वहां से, हाँ सब जगह जाती है, लेकिन यहाँ आपको मुअल्लिम का आदमी नहीं मिलेगा, यहाँ से आपकी अपनी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी मुज़दलिफा लाके छोड़ देने की है बस। अब मेरे महतरम बुजुर्गो दोस्तों, सूरज निकल गया है, हज का तीसरा दिन है, वुकूफ मुज़दलिफा आपने कर लिया, आप बड़े शैतान के कंकरी मारेंगे, बड़े शैतान के आकर के 7 कंकरी मारेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर बहुत भीड़ हो रही है, वो कंकरी मार के जत्था हटेगा, आप आगे बढ़ेंगे, वो हटेंगे, फिर आप 10, 20, 25 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। बिल्कुल नजदीक जा करके आप क्या है, बिल्कुल अच्छे से मजबूती के साथ पहला काम ये करना है कि जो हमने तलबिया लब्बैक पढ़ रहे थे अपने कमरे से लेकर के, और पूरे मिना में पढ़ा, पूरे अरफात में पढ़ा, मुज़दलिफा में पढ़ा, वो तलबिया बंद हो गया, और मिना में आकर के जमरात पर बड़े शैतान पे आकर के तलबिया बंद। हज का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। अब मेरे महतरम दोस्तों, अब हम यहाँ एक कंकरी लेंगे, इस तरह जो शहादत की उंगली अंगूठे से पकड़ेंगे, इस दो से उठाएंगे, बगल दिख जाए, और बिस्मिल्लाह पढ़ करके कहेंगे, या अल्लाह आपको राजी करते हैं और शैतान को जलील करते हैं। अल्लाहुम्मा रग़मन लिशयातीन व राज़िय्यन लिर्रहमान, या अल्लाह मैं शैतान को जलील करता हूँ और रहमान को राजी करता हूँ। इस तरह 7 कंकरियां आप मारेंगे। पहला काम हो गया आज का। अब दूसरा काम है कुर्बानी। हमारे यहाँ कंकरी मारने में और कुर्बानी करने में और हल्क कराने में तरतीब वाजिब है, अब हमें देखना है कि हमने जो हज के जरिए हम कुर्बानी करा रहे हैं, टोकन पे हमारा नंबर क्या आया है, टाइम क्या आया। आपको कुर्बानी का कार्ड मिलेगा और उसके ऊपर वक्त भी लिखा हुआ मिलेगा, और आप उसको स्कैन करके चेक भी कर सकते हैं मेरी कुर्बानी हुई या नहीं हुई। अब मुख्तसर हम टाइम को पकड़ लेते हैं। हाजी जी, जब हमने टाइम पकड़ लिया, अगर हमें पता लग गया कि हमारी कुर्बानी आज नहीं है कल है, तो फिर हम अब से जगह क्या करेंगे? अगर आपकी हिम्मत और ताकत है तो जमरात से सुरंग के रास्ते से हरम शरीफ आ जाइए तवाफ ज़ियारत के लिए। काय के लिए? हाँ, ये हज का तीसरा फर्ज है, तवाफ ज़ियारत हज का तीसरा फर्ज है। अगर किसी ने तवाफ ज़ियारत नहीं किया तो उसके लिए बीवी क़यामत तक हलाल नहीं होगी जब तक कि जाके तवाफ ज़ियारत न कर ले, और वो भी हज के दिनों में, इसलिए इसका खास ख्याल रखें। जब हमारी कुर्बानी आज नहीं हो रही, हम तकरीबन 12 बजे रमी करके फारिग हो गए, अब 12 बजे से लेकर के शाम तक और पूरी रात हमारे पास है और आज हमारी कुर्बानी हो नहीं रही है, तो अब मेरे महतरम दोस्तों, कंकरी मारने में और कुर्बानी करने में और सर मुड़वाने हल्क कराने में तरतीब वाजिब है, लेकिन तवाफ ज़ियारत में तरतीब वाजिब नहीं है। तवाफ ज़ियारत आप 10 तारीख को भी कर सकते हैं, दिन और रात कभी भी, 12 को भी कर सकते हैं, दिन रात कभी भी, और तेहरा की मगरिब तक कर सकते हैं, हाँ 12 की मगरिब तक, 10, 11 और 12, यानी बकरा ईद के दिन भी, और बकरा ईद के दिन जो अगले दिन है 11 तारीख उसको भी, और 12 की मगरिब तक कर सकते हैं। तो आज कौन सा तारीख है? 10 तारीख है चांद की, आज बकरा ईद का दिन है ना, तो 10 तारीख है, 10 तारीख में हमने कंकरी मार दी और हमें पता लग गया कार्ड के जरिए कि हमारी कुर्बानी आज है ही नहीं, तो हम हिम्मत से काम ले, और हम अगर हिम्मत है तो पैदल के रास्ते से, यही जमरात से हम हरम शरीफ निकल जाएंगे, सुरंग के रास्ते से, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी मकान है, वहां जाकर ये सुरंग निकल रही तकरीबन 3-3.5 मील है। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, लाइटें लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, और खाने का सामान बढ़ता रहता है। आप चले जाइए आराम से अल्लाह का जिक्र करते हुए, तीसरा कलमा पढ़ते हुए। और अगर नहीं, आपने पैदल नहीं जाना है तो अपने खीमे के पास आ जाइए, जहां वापस आ जाइए, और खीमे के पास आकर के, और कुर्बानी कल ही होनी है और ताकत भी हिम्मत नहीं, लेकिन बस से जाएंगे, तो अब अपने खीमे के पास से जो नजदीक का रास्ता जीटी रोड पर चढ़ रहा है वहां ऊपर चले जाइए। मालूम करिए कि ये कौन सा पुल है, फाद कुबरी, मीना कुबरी अब्दुल अजीज है, मीना कुबरी फाद है, जो भी मालूम करे, पॉइंट नंबर मालूम कर ले ताकि वास्ते में दिक्कत ना हो। अब आप यहाँ से हरम शरीफ चले जाएंगे, पैदल वाले भी हरम शरीफ आ गए और आप लोग भी हरम शरीफ आ गए, और हमारी कुर्बानी नहीं हुई, हमारी कुर्बानी कल है। लीजिए हम असर मगरिब तक पहुंच जाएंगे, जिस टाइम भी पहुंचे,
اصل موقع تو آ ہی جائیں گے. آنے کے بعد ہم حرم شریف میں چونکہ قربانی ہوئی نہیں, ہم حالت احرام میں ہیں, تو آج ہمیں کیا کرنا, طواف زیارت کرنا ہے. نماز کا وقت طواف زیارت کرنا, نماز سے فارغ ہو کے کرنا. بھائی عصر کا وقت ہے تو عصر پڑھ لو پہلے, مغرب کا وقت ہے مغرب پڑھ لو, ظہر کے ٹائم پہنچے ہم تو ظہر پڑھ لو جس ٹائم پہ پہنچے. اس کے بعد ہم نے جس طرح سے ہم نے عمرے کا طواف کیا تھا, ہمیں ایسے ہی طواف زیارت کرنی ہے. کیا مطلب, کیا ہم یہاں آ کر کے تلبیہ ہمارا بند ہو گیا؟ کہاں بند ہو گیا تھا؟ بڑے شیطان پہ. اب تو سبحان اللہ پڑھتے جا رہے ہیں, تلبیہ تو بند ہو گیا, ایک کام تو ختم. یہاں آ کر کے ہم استباع کریں گے. کیا کریں گے بھائی؟ استباع کریں گے, کیونکہ ہمیں سعی بھی کرنی ہے. ہمیں کیا کرنی ہے؟ سعی بھی کرنی. استباع مانے کندھا کھولنا, یہ مرد کریں گے, عورتیں بالکل نہیں کریں گے. استباع کریں گے اور اس کے بعد اب حج کے جو وہ ہے نا طواف زیارت کی نیت کریں گے. یا اللہ, میں حج کا طواف کرتا ہوں, اس کو طواف زیارت کہتے ہیں. یا اللہ, میں حج کا طواف کرتا ہوں, آپ اسے قبول کر لیجئے, میرے لیے کرنا آسان کر دیجئے. تو تلبیہ تو پہلے بند ہو گیا تھا, استباع کر لیا, نیت کر لی, استقبال کر لیجیے جیسے نماز میں کرتے ہیں. بسم اللہ یا خالی اللہ اکبر, یا بسم اللہ اللہ وللہ الحمد, کچھ بھی کہہ لیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد حضرت سب کے سامنے ہے. اس کے بعد پھر ہم استعلام کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ استقبال پہلے ہی چکر میں ہوگا. استعلام کریں گے. استعلام کرنے کے بعد اب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایسے چومیں گے اور اپنے 7 دانوں کی تصویر رکھیں گے. مرد حضرات شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں گے. کیا کریں گے بھائی؟ کیونکہ ہر وہ طواف بات سمجھ میں, ہر وہ طواف جس کے بعد سعی کرنی ہے, استباع بھی کرنا ہے, رمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے قربانی کر لی پھر استباع کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا, وہ بتا دوں گا میں آپ کو. ہم نے قربانی تو کری نہیں ہے, ہم نے یہ کام کر لیے, تلبیہ وہاں بند ہو گیا تھا, یہاں آ کر کے استباع کیا, یہاں آ کر کے ہم نے نیت کی, یہاں آ کر کے استقبال کیا, اور ہم نے پھر استعلام کیا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کرتے ہوئے. اب ہم جو ہے یہ رمل کریں گے. مرد حضرات شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں گے اور کثرت سے سبحان اللہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے, اور پڑھتے پڑھتے جب یہاں رکن یمانی پر آ جائیں گے, یہاں سے نارمل ہو کر کے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں گے, اور یہاں پڑھ کر کے ختم کر دیں گے. اس کے بعد پھر دوسرا چکر اسی طرح, پھر تیسرا چکر. شروع کے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے اور 7 چکروں میں استباع کریں گے, کیونکہ ہماری قربانی نہیں ہوئی ہے. اب اس کے بعد ہم 8واں استعلام کر کے باہر آ جائیں گے. 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھیں گے, زمزم وغیرہ پیئیں گے. 9واں استعلام کر کے حج کی سعی کریں گے. کیا کریں گے بھائی؟ حج کی سعی کریں گے, جو کرنا واجب ہے. ہم صفا پر چلے جائیں گے, صفا پہ جا کے نیت کریں گے, دعا کریں گے مختصر سی. یہ سعی کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں حج کی سعی کرتا ہوں, اسے قبول کر لیجئے, میرے لیے کرنا آسان کر دیجئے. مختصر دعا کریں گے. صفا سے مروہ 1 چکر, اور بیچ میں ہری لائٹ میں مرد حضرات دوڑیں گے, اور ہماری حجن دوڑیں گی نہیں. ان کی طرف سے حضرت ہاجرہ دوڑ چکی ہے. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, صفا 7واں چکر مروہ پہ پورا ہو جائے گا. یہاں آ کر کے نماز پڑھ لیجئے. نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کھانا وغیرہ فارغ ہو جائیے. جس وقت بھی فارغ ہو جائے, دن میں رات میں, جب بھی فارغ ہو جائے, آرام سے واپس مینا جانا ہے. اب آپ اگر پیدل جانا چاہیں تو وہی سرنگ کے راستے سے نکل جاؤ, نہیں تو باہر آ جائیں گے, اور باہر آپ کو کوئی بتا دے گا. معلوم کر لیجئے کبوتر چوک کے اوپر والے روڈ, چونکہ جی ٹی روڈ چلیں گے, نیچے کے نہیں چلیں گے. اوپر والے پر راستہ معلوم کر کے اوپر چلے جائیے, اور اوپر جانے کے بعد بس والے سے کہیے کہ ہم نے جو نوٹ کیا ہے کہ بھائی ہمیں مینا جانا ہے, مینا کبری عبدالعزیز پوائنٹ نمبر 58 پر, پوائنٹ نمبر 58 پر. اگر آپ نے کہا مینا جانا تو کہا مینا کہاں چھوڑوں, مینا تو بہت بڑا ہے, میں کہاں چھوڑوں تمہیں. اس لیے یہاں سے جاتے وقت اپنا ایڈریس معلوم کر کے جانا کہ یہ پل کون سا ہے, کہ پل ہے مینا کبری عبدالعزیز پوائنٹ نمبر 58. ہاں بس سب کام کریں گی, نماز نہیں پڑھیں گی, حرم شریف نہیں جائیں گی.
सब काम करेंगी, सब काम करेंगी। जैसे बताया जा रहा, नमाज तो उनकी यहाँ भी नहीं है, माफ है, वहां भी माफ है, तवाफ ज़ियारत नहीं करेंगी। हाँ 12 की ये है। अगर औरत 12 तारीख तक पाक नहीं हुई, 13, 14, 15 जब भी पाक हो जाए, क्योंकि वो कुर्बानी करके तो बाल मुड़ा के एहराम की पाबंदी से निकल जाएगी। जब भी वो पाक हो जाए, जब भी पाक हो, क्या 10 दिन लगे 20 दिन लगे, तो उसको जब भी तवाफ ज़ियारत करना है और उन पर कोई हर्ज नहीं है। ये बात हो गई। एक बात अभी और बता दूं, अगर किसी हज्जन का फौरन वापसी है, ऐसे भी होगा ना कि भाई अब मदीना जाना है, ये जो गई है उनको इंडिया आना है, जो पहले मदीना जा रहा है या हाजी मदीना जाएंगे तो उनको वापसी में इंडिया आना है। अब नापाक हो गई, तवाफ ज़ियारत फर्ज, उसके बगैर औरत हलाल नहीं, तो अब क्या करें? और इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है कि वो पाक हो जाए। बात सही मानी ना? हज्जन ध्यान सुनो, इतना वक्त मिल ही नहीं पा रहा है। हाजी ने अच्छा पॉइंट याद दिलाया, इतना अगर वक्त मिल रहा है तो भाई आराम से रहे, वो जब पाक हो जाएगी तवाफ ज़ियारत कर ले, कोई मसला ही नहीं है। और लेकिन ऐसा वक्त आ गया तो फ्लैट इंडिया के लिए है या रवानगी मदीने के लिए और पाक होने दे बेचारी, तो उसे क्या करेंगे? इसी हाल में नहला देंगे उसको। क्या करेंगे? नहला दो उसे अच्छे से, और कपड़ा वगैरह रख करके इसी हाल में उसको हरम शरीफ ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे? हरम शरीफ ले आएंगे और तवाफ ज़ियारत करा देंगे। तवाफ ज़ियारत करा देंगे, तवाफ ज़ियारत के बाद सही भी करा देंगे। अब तवाफ ज़ियारत के बाद सही भी करा देंगे। अब हमने चूंकि इस हालत में हरम शरीफ में दाखिल किया, तवाफ ज़ियारत तो कबूल हो गया, लेकिन इसकी वजह से अब बड़ा जानवर 7 हिस्से वाला, जैसे वहां गाय चलती है या ऊंट चलता है, वो जानवर ज़िबा करना पड़ेगा। सही मायने है जी? हाँ, अगर ये वक्त ऐसा आ गया तो ऐसे इसलिए हम कह रहे हैं कि दवा लेके जाना, दवा ही लेके जाना, क्योंकि ऐसे फंस जाते हैं कि भाई औरत पाक ही नहीं हो रही, फ्लैट का टाइम आ गया। अगर हो गया, अगर मसला मालूम होना चाहिए, वैसे इंशाअल्लाह जब दवा लेके जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। अल मुख्तसर, हाजी ने सही बात कही, औरत सारे काम करेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी और हरम शरीफ में दाखिल नहीं होगी, क्योंकि हरम शरीफ मस्जिद है। ये जब दाखिल होगी, जब पाक हो जाएगी, देर की वजह से 13 पाक हो, 14 में, 15 में, क्या 20 शव्वाल को पाक हो, इस पर कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये पाबंदी अल्लाह की तरफ से है। और अगर आपको वापसी है फौरन, मदीने के लिए है भाई, रिक्वेस्ट करी ना मानना है, तो फिर क्या करेंगे? या इंडिया के लिए वापसी है, नहीं मानना है वो, चलो हम तो पाक नहीं होंगे, फिर नहला दो अच्छे से, बिल्कुल साफ हो जाए, ताकि इसलिए नहलवाना ताकि वो गंदगी ना ज्यादा आए, और कपड़ा वगैरह रख करके और उसको हरम शरीफ में दाखिल कर देंगे और सारे काम कराएंगे। अब इस जुर्माने में बड़ा जानवर ज़िबा करना पड़ेगा जी, 7 हिस्से वाला, और वो वहीं करना पड़ेगा, यहाँ फोन करने से काम भी नहीं चलेगा। बारात आ गई क्या? बस इनके बस निकलने वाले 5-10 मिनट और। हाँ बोल दो कि अभी बस हज का आखिर चल रहा बिल्कुल, क्या अभी रुक रहो, अभी खाना नहीं खिला दो, चाय पिला दो मेहमानों को। बात समझ में आ गई? अब आपने यहाँ तवाफ ज़ियारत सही वगैरह कर ली, कुर्बानी हमारी नहीं होती। जिस वक्त भी हम वापस मीना चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? मीना। रात में या सुबह तक हम मीना पहुंच गए। अब हज का कौन सा दिन आ गया? चौथा दिन आ गया। चौथे दिन के बाद अब सुबह में हमारी कुर्बानी भी हो गई, 9 बजे 10 बजे हमने बाल भी मुड़ा दिए। बाल मुड़ाने के बाद हमने गुस्ल भी कर लिया, अपने कपड़े पहन लिए। ठीक है, आज जो हमें काम करना है जवाल के बाद, आज कंकरी कब माननी है? वक्त कब है हमारा? और हम कब जाएंगे? असर के बाद। आज तीनों शैतानों को पिटाई करेंगे, तीनों शैतानों के कंकरी मारेंगे, पहले छोटे के, फिर बड़े के, फिर से बड़े के। और अगर किसी की कुर्बानी 10वीं तारीख को हो गई, रात में 9 बजे 12 बजे तक हो ही गई इसकी कुर्बानी, तो वह 1 बजे नहा धोकर कपड़े पहन ले, और पहनने के बाद सुबह जाकर के इन्हीं कपड़ों में तवाफ ज़ियारत कर ले। तवाफ ज़ियारत में उसको रमल तो करना होगा, अकड़ के तो वो चलेगा, लेकिन इस्तिबा नहीं करेगा, क्योंकि एहराम तो खुल चुका है, एहराम खुल चुका है। वो भी तवाफ ज़ियारत करके वो भी कहाँ आ जाएगा? मीना आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? मीना। अब दोनों के सब काम पूरे हो गए। अब जोहर की नमाज के बाद कंकरी मारने का वक्त शुरू हुआ है। लेकिन वो बना हुआ और
تو وہ حج کا احرام باندھیں گے, اب دوبارہ نیت کریں گے حج کے احرام کی, وہ وہیں رک جائیں گے چونکہ شرعی ضرورت ہے اور حج کا وقت آ گیا. جب سنتوں کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور فرض آ گیا ہے تو فرض پڑھیں گے. اب وہ کیا کرے گی, نیت کر کے دوبارہ احرام باندھیں گے حج کا, حج کے سارے ارکان پورے کریں گی. اس کے بعد جو پہلے بچے ہوئے ارکان ہیں وہ پورے کریں گی, ہاں دوبارہ کریں گے. ان پہ کوئی ہاں عمرے کا رہ جائیں گے نا, وہ بعد میں کریں گی. اور ان کو نا اب بعد میں کرنے کے لیے بھی مسجد عائشہ سے احرام باندھنا پڑے گا. کہاں جانا پڑے گا؟ مسجد عائشہ, مسجد جعرانہ. حج کا کام مکمل ہو گیا, اب پہلا والا عمرہ رہ گیا, وہ تو ٹوٹ گیا تھا نا, وہیں شرعی مجبوری کی وجہ سے ٹوٹ گیا, تو اس کو پھر میقات جانا پڑے گا, مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ. وہاں سے سر احرام باندھ کر کے آ کر کے نیت, تلبیہ, احرام, طواف, سعی. مسجد عائشہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے لیکن حدود سے باہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہوئی حدود ہے مسجد عائشہ. چلیے جی, آج کون سا دن ہے ہمارا حج کا؟ چوتھا دن ہے. آج ہمیں تینوں شیطانوں کے کنکری مارنی ہے, اور کنکری مارنے کا وقت کب ہے ہمارا؟ زوال کے بعد. اور ہمیں کب جانا ہے احتیاطاً؟ عصر یا مغرب بعد. بہرحال پہلے شیطان کے کنکری ماریں گے جیسے بتایا, پھر دعا کریں گے, پھر بڑے شیطان کنکری ماریں گے, پھر دعا کریں گے, پھر سب سے بڑے شیطان کنکری ماریں گے, اور اس کے بعد اپنے کمرے کو واپس آ جائیں گے. اور مغرب بعد یا عشاء بعد جس ٹائم بھی آ جاؤ. اور اب ہمیں کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا. رات میں مینا کا قیام اور جماعتوں سے نماز. ٹھیک ہے جی. اب کل کا دن آ گیا, یعنی حج کا 5واں دن آ گیا. حج کا 5واں دن آ گیا. آج ہمیں کوئی کام نہیں کرنا. اگر آپ میں ہمت و طاقت ہو تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے مسجد خیف دیکھ آؤ, جہاں پر 70 نبی دفن ہے. اگر ہمت ہو, جہاں نہ فرض ہے, نہ واجب, نہ سنت, نہ مستحب, کچھ نہیں تو زیارت ہے, زیارت کریے آؤ. نہیں تو کوئی بات نہیں, اپنے کمرے پر آرام کرو اور سامان تیار کر لو. سامان کیا کر لو؟ تیار کر لو. سامان وغیرہ سب تیار کر لیے, سب باندھ لیا. زوال کا وقت ہوا, سامان لے کے مت جانا, سامان لے کر کے مت جانا. زوال کا وقت ہو گیا, ظہر کی نماز پڑھو, عصر کی نماز کے آس پاس, کیونکہ عصر کی نماز 3:30 بجے وہاں, اس آپ پھر نکل جائے جمرات کے لیے. آج بھی تینوں شیطانیں کنکری ماریں گے. پہلے سب سے چھوٹا شیطان کے کنکری ماریں گے, ایک طرف ہٹ کر کے دعا کریں گے, پھر بیچ والے کے ساتھ کنکری ماریں گے, پھر دعا کریں گے, پھر سب سے بڑے کے کنکری ماریں گے, اور دعا بغیر کیے واپس آ جائیں گے. اپنا سامان اٹھاؤ, حجن کو لو. اب بس لگی ہوئی ہے, کیا لگی ہوئی ہے؟ بس ہے. اب صرف بسیں لگی ہوئی ہے, بسوں میں بیٹھو, عزیزیہ آ جاؤ. وہ بولے گے عزیزیہ, بیٹھ کے آ جاؤ. فری بالکل فری ہے. اب میرے بھائی بات سنو دھیان سے, آخری ہے, ہمیں بھی تقاضا ہے آج جانے کا. بات سنو, اب ہم کنکری مار کے کب فارغ ہو جائیں گے؟ عصر کے بعد کا مغرب تک, عشاء تک. اگر ہماری کنکری کسی وجہ سے نہیں لگی اور فجر کی اذان ہو گئی مسجد مینا میں, فجر کی اذان کہاں ہو گئی؟ فجر کی اذان کہاں ہو گئی؟ مینا میں. تو اب پھر ہم کنکری مار کر کے ہی نکلیں گے. 13 تاریخ کو پھر کنکری مارنی پڑے گی. اس لیے اب 6 دن, ہاں 13 تاریخ ہو جائے گی, 6 دن ہو جائے گا. تو اس لیے آپ حضرات کنکری مار کے مغرب بعد, عشاء بعد, 1 بجے, 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے مینا کو, فجر سے پہلے مینا کو خالی کر دیں گے. ارے کر ہی دیں گے انشاءاللہ, تو کہہ دو یار, کوئی نہ رکتا. ہر ٹائم 1000 بسیں چلتی بھیا, لیکن بائی چانس اگر رہ گیا, مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. اتفاق سے کوئی رہ گیا بیچارہ, ارے تھا بیمار, کسی نے نہ پوچھا, بیچارہ وہیں پڑا رہ گیا, کچھ بھی تو ہو سکتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں, اگر اسے وہاں فجر کی اذان ہو گئی, کنکری مار تو دی اسے, لیکن فجر کی اذان ہو گئی تو پھر وہ کنکری مارے گا. آج بھی وقت زوال کے بعد ہے, لیکن اس کے لیے رعایت ہے کہ فجر کے بعد جو سورج نکل جائے تب ماری آئے تینوں کے, اور مار کے وہ بھی اپنا کمرے پر آ جائے. حج مکمل ہو گیا. اللہ پاک قبول فرمائے اور آسانی کا معاملہ فرمائے. کوئی